ChatGPT. So today's topic is ChatGPT pros and cons. The topic is clear. ChatGPT pros and cons. Just a minute. I am writing in the chat box. ChatGPT pros and cons. Okay. Okay. So you have 5 minutes to think about the topic, and so it's 9:09, and at the 9:15 we will be starting the GD. Okay. So just write down your topic. Write down your points.
तो सबके पॉइंट्स रेडी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ तो Can प्लीज I स्टार्ट start? दैट जुडी. Can I हाँ start? ओके वाला. हाँ यस राशि स्टार्ट. Okay, so good evening, everyone. I'm Rajshri. So we are here to discuss on topic ChatGPT and its pros and cons. So from my perspective, I'll share. So if we talk about the ChatGPT, it is an AI tool, artificial intelligence, which is emerging as a fourth revolution of technology. So ChatGPT is conducted by OpenAI and it's founded by Sam Altman. It is different from normal search engines which we are using now, just like Google and Bing. In this, we directly get a result without searching for different webs and webs like we are doing in the Google. So it's very easy to search anything. It gives directly result whatever we search in this ChatGPT, and it is based on the large language model. It contains a lot of information, and but the main I from my perspective, the main pros is like it contains information from 2021. That's from my perspective. I'm curious to know ideas from my colleagues also. Okay. In- I would in like my to carry perspective, forward the like, idea group of the group discussion as ChatGPT is the AI generated tool and which shows the human-like intelligence. If we search anything, it shows result in very systematic manner. If we have to send mail, just we type in the we give the according to our words the same result. So it increase the our efficiency, productivity at the job place, and it eliminates the more laborious process, and we can use that time for more creative idea, innovative thinking, and increase our productivity. At the same time, it has some cons, like it is not as as developed as a human intelligence level, because sometimes it shows some accurate information which may create the misinformation or spread the fake news. That's why it should be we need the more advanced version of GPT to create the more proper accurate information. I am agree with Good my evening, everyone. In my point of view, it has, and the cons are, it has not ability of adaptability, and it decreases the efficiency of human. It reduces the thinking ability of human, and also sometimes it gives wrong information, and it does not solve any problem. And I am human So, agree with my two fellow group mates that ChatGPT have several pros and cons. Now, as per my opinion, ChatGPT has more cons as compared to pros. Basically, due to the uses of ChatGPT, the thinking capability of human being are accomplished. And that's why in various job sector like content writing, as well as in school, college students are also using ChatGPT to make their projects, which not only kill their thinking capability, as well as they make, sometimes they are addicted towards it, and that's why they are waiting for just the deadline. so what I like to add here, I'm agree with all the colleagues of our group. Am I audible now? Yes. Yes. Yes, you are ready. So I have written some points. Yeah, actually, it's right. There are some pros and cons. So I'd like to divide. For example, for the students below BTech who are in graduation or school level, they should not use ChatGPT because that decreases the mathematical skill as well as the critical thinking. But if people are from MTech or PhD, they should use that thing because it can be used as a previous model to predict something newer. So it is helpful for them because they already gone through the bachelor's and school time, so they are not going to suffer from the critical thinking or decision making thing. So we can divide on the basis of age criteria or education criteria. First one. Second, more thing what I'm trying to say, yes, that it is a AI/ML model which, as we are going to use in future, keep new things keep on adding, so it is going to be more accurate in future. What I'm trying to say,
that some laborious work like Excel sheet, PPT, demonstration, documentation, there we can use ChatGPT. But where we need mathematical model and some new model where you should not use ChatGPT. So there are something where we can use, like in robotics industries. In robotics industry, humanoid robot, it's not possible to grow up. So there we have some definitely need of ChatGPT. I have a different perspective to what just points have been mentioned regarding like BTech below and MTech above students should be using that, because this is really unfair to the people, because in many of the BTech students who are actually being in rural areas, I mean whose professors are not that good at teaching, so they would be referring ChatGPT so that they could understand it more better. So they are trying, they have the view of using it in such a way that so that they could learn something instead of misusing of that. So yeah, I would also agree that there are pros, like it reduces the efficiency, sorry, it reduces the load on the humans, and also it has a good efficiency, and it also becomes easy for ease of searching becomes ease, and also it helps in solving many problems. And also there are many cons as well, like which have been discussed already, like creativity would be lacking because most of the students would be using in is this particular tool, so that most of the answers or the assignments which they are getting in the classes or in the schools or graduation level studies, they would be putting that in the chat GPT so that they could ease their burden. So these are few cons which have been already discussed, but I feel that chat GPT pros and cons also depend on the person who's using it and on what intention he's using. So this really matters, I feel. I'm totally agreeing with Vignesh. I Actually, am yeah, you speak, Jeevan. Yes, thank you. Thank you for giving chance. Now I will discuss ChatGPT pros and cons. ChatGPT is a AI tool nowadays, is a very famous thing and AI tool which is giving response to the understanding by just as a human and giving response to questions to the questions. So in this manner, it may accurate and it may accurate or not accurate perfectly at the time. At the right now we don't know, uh, and it gives better research students and MTech students which they are want to search. It will very helpful. And if anybody wants to like cyber threat skills, he also learn from ChatGPT. He will create violence in the cyber security nowadays, and in future maybe teaching staff also reducing because of this information, much information provided by the chat GPT. It will reduce the teaching staff. If the whatever data in chat GPT provided, if it is accurate, it may leads to a wrong position to the student who are using chat GPT. These many disadvantages are also there. It is depend upon the finally people. Thank you. want I to like to add. add one point. Hello. I like to add the point that many of the pros is the chat GPT AI model gave rise to many of the chat bots that we use, like in the banking sector or any site website we open, we can see that any pop-up we see that is based on a chat bot that is same as that of the chat GPT. That is, we can chat with the artificial bot which gives a question to our answers, sorry, which gives the answers to the questions that we ask without any human interference or without any service agents. We can solve by only texting. And cons is that, and according to my point, the cons is mainly the dependence on the AI. The dependence on AI, the human nowadays is lacking their emotional intelligence, lacking or in the verge of going to be lost the emotional intelligence. I agree with your point. As we search in ChatGPT,
it only show the text without any emotional attachment as a human shows while writing or doing some kind of conversation. So it will reduce the emotional intelligence of people, and also wait for the people who are in the creative field, like the artist, and who takes so many days, month to create the image of perfect image. But in chat gpt we can just create the image using 1 or 2 3 seconds, and also it will reduce the cognizance ability of the students if they use the chat gpt for their project, as my friend has been mentioned. So I think it should be used in the more regulated way to get benefit as well as increase the our productivity. I want Yes, to I'm add totally agree with agreeing my with fellow some what points groupmates Ron said, that the using that of but ChatGPT I is not a feel bad option. Using of ChatGPT is not a bad option, but using it in correct way, it will be our ड्यूटी. हम लोग चैट जीपीटी को एक सही वे में अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो डेली के लाइफ में जो काम होता है वो इजीली सॉल्व हो सकता है. लाइक मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. कोई भी कंटेंट राइटर चैट जीपीटी यूज करने से पहले जो कंटेंट लिखता था उसमें उनको बहुत टाइम लगता था, लेकिन आप उनको कम टाइम लगता है. लेकिन बात ये भी आ रहा है कि उसमें जो फीलिंग था पहले वो फील अभी मिस हो जा रहा है. तो इसके वजह से जो हो रहा है कि सब लोग अपना काम चैट जीपीटी के थ्रू करवा रहा है, एंड अपना जो थिंकिंग कैपेबिलिटी था, जो एक ह्यूमन टच था, जो एक ह्यूमन फील था, वो नहीं आ रहा है. इमोशनल इफेक्ट नहीं है कहीं भी. तो चैट जीपीटी को सही वे में इस्तेमाल करना हम लोगों का ड्यूटी है. तो अगर इस चीज को सही वे में इस्तेमाल किया जाए तो हमारे देश का जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको भी कई हद तक कम किया जा सकता है. I'm totally agreeing with Anupam. And my actually, I just want to add there is a news like with the Chat GPT in the upcoming future, one person can become a billionaire. In today's world, for becoming a billionaire, there are thousands of people we need for work to work in our team. But in the coming future, one can become a billionaire with these types of AI tools. So from my point of view, these are very useful. These not only make, I think it increases the efficiency by decreasing the repetitive works that humans need to do. Because as the human revolution takes place, we definitely get the brain or the things that our ancestors already have. So I think for the upcoming future, they need something more revolutionary. So I think ChatGPT helps in these area a lot to think other the fields that are already existing. The ChatGPT makes our time free from the repetitive works to think out of the box. That's from adding my to the side. point adding to the point as mentioned earlier, so I would like to give an example of that. Like many customer based apps like Swiggy or whatever, Apollo 24/7, most of these apps also have a particular type of chat gpt which basically answers frequently whatever the questions you would be asking, it would be answering those questions. So in this way the human intervention has been reduced, and also the whatever the services which the company has wanted to offer was also being offered. So in this way, ChatGPT is also being helpful. So there is also this particular side of scope we need to further uh, look about. So I want to refine the of our it colleague that can also solve the language barrier. It can also solve the language barrier. Many students come from rural background and they do not know English or any language, so it can help to solve this problem also. so I would like to refine one thing that one of my colleagues recently told that they will reduce human intervention. So we can basically say that ChatGPT will be helpful for management. Anyhow, it is going to be a part of management. It will help in the future. Okay, so I think you have discussed among yourself. So one of you will conclude the discussion, please. May I conclude? Yes, sir. Yes, Anupam. Okay.
Okay, let me conclude our today's group discussion about the pros and cons of ChatGPT. While we have a fruitful discussion along with some fruitful argument, we have our entire group has divided into two parts. Some of our are feel that ChatGPT have more pros, and some of us feel that ChatGPT have more cons. Now, some of our friends have introduced about the ChatGPT that it is an open AI tool, and some of our friend has mentioned that it can be used for teacher training as well as content writing. And some of them are felt that the using of ChatGPT decrease the human interaction or human innovation in somewhat. Now, as per my opinion, everything has some pros and cons. Like a coin, everything has two faces, same as ChatGPT. It have also some pros and cons. Now, it will totally depend upon us for which purpose we will use that thing, for our betterment or betterment. Thank you. Okay. So, मैं sir, बता one point I like to add in conclusion that yeah, it's totally correct that you all the cons. This is the last point in the conclusion I'd like to add that all cons can be added into pros depending person to person and the specific use. तो वन थिंग पहले मैं क्लियर कर देता हूँ मुकुल, जैसे आपने अभी एक बार किसी का कंक्लूजन हो जाता है ना, फिर आप कुछ भी ऐड नहीं करना है उसमें। ओके, ये बात का आपको वहां पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो हो गया मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे सब लोगों को ध्यान रखना है। अगर किसी ने कंक्लूजन कर दिया, इट मीन्स कि वो लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद आपको कुछ नहीं बोलना है, चाहे उसने सही बोला है चाहे गलत बोला है। ओके, आपको अपोज भी नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि आपको यूनिटी दिखानी है उस टाइम पे ग्रुप में। द वन सेकंड थिंग इज कि पार्टिसिपेशन सबने ही किया था आपके ग्रुप में, लेकिन किसी ने कम किया है, किसी ने ज्यादा किया है। तो देखो, सबसे कम जीवन और सुबह ज्योति आपने किया है पार्टिसिपेशन। आई डोंट थिंक कि क्या रीजन रहा होगा, लेकिन ये हो सकता है कि आपके पॉइंट्स दूसरे पर्सन ने बोल दिए हो, इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हो। लेकिन आपको कुछ ना कुछ करके अपने पॉइंट्स ऐड आउट करने हैं उसमें। ऐसा नहीं कि आपको चुप बैठना है, चाहे आपको रिपीटेटिव पॉइंट्स होंगे तो वो भी आपको बोलने हैं। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स मार्क्स वहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्रीज ही होंगे। ऐसा नहीं लगेगा पैनल मेंबर्स को कि आपने कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि 3% ज्यादा बोल रहे हैं और 1-2% नहीं बोले हैं, तो उनपे माइंड फोकस नहीं होता। जो भी पर्सन नहीं बोला वो सोचते हैं कि इन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, तो इसलिए आपको पार्टिसिपेट करते रहना है ग्रुप में बीच बीच में। ठीक है, और 2 to 3 टाइम्स तो एंट्री लेनी है। अनदर थिंग इज, जैसे राजश्री ने ग्रुप में पहले एंट्री ली थी, उसके बाद फिर जीवन को बोलने का मौका दिया था, तो दैट्स गुड। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आपके पास ग्रुप डिस्कशन है तो आपको ही बोलना है वहां पर। ठीक है, द तो अनदर थिंग ये है कि अभी मैं मार्क्स बताता हूँ जैसे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो मुझे जो मार्क्स लगे, अनुपम, मुकुल, राजश्री और विघ्नेश, आपके मतलब हाईएस्ट मार्क्स है, 7.5 आउट ऑफ 10 है। और उसके अलावा जीवन आपके हैं 6 आउट ऑफ 10, तोरण आपके हैं 6.5 आउट ऑफ 10, और आदित्य आपके भी 6.5 आउट ऑफ 10, और सुभज्योति आपके 6 आउट ऑफ 10 है। क्योंकि आपने पार्टिसिपेशन कम लिया है, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो आप समहाउ पार कर गए, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि स्टार्टिंग की ग्रुप डिस्कशन का जो स्टार्टिंग हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, राशि ने अच्छा किया था। लेकिन जो कंक्लूजन किया था उसमें अनुपम आपने सबके पॉइंट्स ऐड नहीं किए हैं, जस्ट केवल आपने 2 या 3 लाइंस में ऐड अप कर दिया है। आपको ये बोलना चाहिए था, जैसे मुकुल ने पार्टिसिपेट किया था बॉडी में, कि उन्होंने एज क्राइटेरिया के बेसिस पर चैट जीपीटी को डिवाइड किया था। ठीक है, तो अगर आप ये कंक्लूजन में बोलते तो इट वुड बी अ बेटर इम्पैक्ट ऑन द पैनल मेंबर्स। ठीक है, तो ये आपको बोलना चाहिए था, क्योंकि वो जो पॉइंट बोला था उन्होंने क्राइटेरिया के बेसिस पर, एज क्राइटेरिया के बेसिस पर, तो बहुत अच्छा पॉइंट था। मतलब वो हो सकता है कि किसी को यूजुअली थिंकिंग में नहीं आता है वो पॉइंट। ठीक है, डायरेक्ट लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी प्रोज एंड कॉन्स, तो इसीलिए उसके पॉइंट्स पर ही मैंने मुकुल को सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेशन आप सब लोगों ने अच्छा किया था, और वैसे भी ये सिंपल सा टॉपिक था, तो इसमें ज्यादा सोचने का भी नीडफुल नहीं रहा होगा आप लोगों को। उसके अलावा ये होता है कि तोरण आपने काफी इम्प्रूव किया है। जैसे मैंने लास्ट टाइम वीडियो लिया था आपका, और इस टाइम पर आपका थोड़ा पैनिक कर जाते थे पहले, तो अभी आपका वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे ही कंटिन्यूस पार्टिसिपेट करते रहिए आप, और मैक्सिमम ट्राई करिए कि पार्टिसिपेट करें हर जीडी में।
ताकि आपका जो भी अभी थोड़ा पैनिक करने की कैपेसिटी है वो एकदम से ही डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। नाउ कमिंग टू आदित्य। आदित्य, आपने पॉइंट्स तो अच्छे रखे थे, लेकिन आपको थोड़ा और पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा और पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके मार्क्स और इंक्रीज होंगे। आप शायद म्यूट हैं, आप एक बार अनम्यूट करके बोलिए। आदित्य, आप म्यूट हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ, सर क्वेश्चन पूछना था। बोलो। सर अनम्यूट कर। सर ये जैसे कि ये जो जो आईओसीएल का फॉर्म भरा रहा है सर, वो क्या है? मतलब अभी हाँ, ये बायोडेटा फॉर्म। ये कि ये इंटर्नशिप का पूछ रहा है कि हाँ बायोडेटा फॉर्म। तो उसमें सर मैं इंटर्नशिप नहीं किया हूँ, कोरोना था सर उस समय। हाँ, तो आप तो बीटेक प्रोजेक्ट उसमें लिख क्या सकते हैं आप। डालूं? बीटेक प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट, बीटेक या एमटेक प्रोजेक्ट जो भी है आपका, वो आप कर सकते हैं mention। सर इंटर्नशिप नहीं डाल सकते सर कि मतलब कि ऐसे कि झूठ इंटर्नशिप मतलब यार किया नहीं था। देखो, वहां पे वो पकड़ लेंगे अगर आप ऐसे बोलोगे, झूठ वगैरह लिखो तो वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि यार वो बहुत एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स होते हैं। तो वहां पर आप झूठ नहीं बोल सकते हो उनके सामने, क्योंकि वो किसी ना किसी वे में आपको पकड़ ही लेंगे। बाकी सर आप बीटेक सर ये प्रोजेक्ट जैसे कि डालिए अपना। आदित्य एक काम करो, आप ऑलरेडी एनटीपीसी में हो, एनटीपीसी का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनवा लो आप, पता है, समझ रहे हो आप? आप आप एनटीपीसी में हो ना, तो क्या आपको तो सर? एनओसी का भी रिक्वायरमेंट होगा। यस, क्या क्या सर? आप एनओसी। एनटीपीसी में हो ना। एनओसी का? हाँ। ये सर वो तो ले लूंगा। हाँ, तो एनओसी आप लेके जाइए। बाकी आप झूठ मत बोलिए, तो उस समय झूठ का फॉर्म के समय तो नहीं था। वहाँ पे। हाँ, फॉर्म के समय नहीं था तो फिर एनओसी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सर आप झूठ प्रोजेक्ट मत का भी। बोलिए। हाँ, बोलिए। सर प्रोजेक्ट का भी तो मुझे नहीं आता, प्रोजेक्ट जो बनाया अरे नहीं था प्रोजेक्ट वो दोस्त प्रोजेक्ट का क्या कैसे भी होता है करके कि मतलब खरीद प्रोजेक्ट के में जस्ट आपके पास जो भी एम और ऑब्जेक्टिव होता है ना, आप जस्ट उसे मेंशन आउट कीजिए और गूगल पे जाके उसका स्टडी कर लीजिए। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि वो इतना फोकस्ड नहीं ठीक है। रहते हैं, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप का भरेंगे तो वो जानना चाहते हैं कि आपने सीखा क्या है वहाँ पे, क्योंकि एट द एंड आपको जॉब में तो काम ही करना है ना, और इंटर्नशिप इज जस्ट 1 मंथ का ही काम होता है। तो आपने अगर वहाँ पे सीखा होगा तभी आप जॉब पे सीख पाएंगे, राइट। यस। तो आप प्रोजेक्ट का मेंशन कीजिए। ठीक है। Okay? तो अब आते हैं ठीक। मुकुल पे। मुकुल, आपने मतलब अच्छा बॉडी पार्ट अच्छा दिया था उसका। ठीक है, और पॉइंट्स भी आपने अच्छे दिए थे, 2 to 3 टाइम्स एंट्री ली थी, तो दैट इज सफिशियंट। लेकिन जितना लंबा हम जीडी लेते हैं वहां पे उतना लंबा जीडी नहीं चलेगा। तो हार्डली आपका 7 to 8 मिनट चलने वाला है, जिसमें कि आपको 1 मिनट स्टार्टिंग के देंगे, देन आपको 5 मिनट डिस्कशन के मिलेंगे, और फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन दिया जाएगा। और आप सब लोगों का सेंटर कहाँ का पड़ा है एक बार मुझे बताइए। मेरा गुड़गांव। गुड़गांव। सबका मेरा गुड़गांव से है? गुड़गांव। अरे गुड़गांव। कोलकाता। मुंबई मोस्टली गुड़गांव है। अच्छा, आपका कोलकाता है विघ्नेश। मेरा मुंबई भी सर मुंबई सर। अच्छा, आपका मुंबई है। अनुपम, आपका? कोलकाता। सर मेरा अच्छा भी तो मुंबई। अच्छा तो मैं गुड़गांव सेंटर का बता देता हूँ। देखो, गुड़गांव सेंटर में क्या होता है, जीडी जीटी कोई रेंडमली पर्सन लेने आता है, बाहर से कोई पर्सन बुलाते हैं वो। और वो क्या है कि आपको जीडी में एक टॉपिक देंगे, और वो जस्ट अपने आप में बिजी हो जाते हैं। तो जस्ट आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं, वो इतना मतलब भाव नहीं देते हैं आप लोगों को। लेकिन जीटी में वो फोकस्ड रहते हैं। तो जीटी का आप लोगों को ढंग से प्रिपेयर करना है। जीडी में जस्ट आपको मार्क्स दे देंगे वो बेस्ड ऑन योर, मतलब 1-2 बार देखेंगे, और उस 1-2 बार में जो बोल रहा होगा तो उसके देख लेना कि उसका थोड़ा अच्छा इफेक्ट होगा। बाकी जीटी में वो थोड़ा फोकस रहते हैं, क्योंकि जैसे मेरा जब इंटरव्यू था तो उस टाइम पर जीटी में कुछ मेंबर्स लड़ने लग गए थे। मतलब मेरे से एक ग्रुप पहले गया था, तो वो लड़ने लग गए थे, और उनका ग्रुप टास्क का कुछ कंक्लूजन भी नहीं निकला था। तो उन्होंने बोल दिया था कि ये आपका बहुत वर्स्ट ग्रुप है, और हम सबके ही मार्क्स काटेंगे, मीन्स ऐसा आपके मुंह पर बोल दिया गया था। तो सब लोग पैनिक कर जाते हैं उस टाइम पे, लेकिन एट द एंड उनको पासिंग मार्क्स दे ही दिए थे, और जस्ट पासिंग मार्क्स ही दिए थे, उससे ज्यादा नहीं दिए थे। ठीक है, तो आपको बस वहां पर लड़ना नहीं है। अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी बात करते हैं अनुपम की। अनुपम, आपका मतलब अच्छा था, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ, जैसे आप अच्छा बोलते हो। बस आपको ये है कि दूसरों को भी मौका देते हो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कंक्लूजन को आप ठीक करिए, मतलब सबके पॉइंट्स ऐड करिए। ठीक है।
अगर आप कंफ्यूजन सोच रहा है, कोई भी पर्सन अगर कंफ्यूजन सोच रहा है ना, तो वो सबके पॉइंट्स नोट डाउन करके रखेगा पहले ही। तो मैंने नोट डाउन किया था हर किसी का, लेकिन बोलने के टाइम नहीं बोल पाया सबका, हाँ, क्योंकि तो उसी की प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। मतलब एक दो बार आप कंक्लूड करिए, मिरर में देख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद सुबह ज्योति आपको थोड़े पॉइंट्स ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी एंट्री लेनी है आपको। बात करते हैं। आई थिंक द गर्ल हैज लेफ्ट द मीटिंग। ओके, सो मुकुल आपका फीडबैक हो गया, सबका फीडबैक हो जीवन, आपको भी एंट्री लेने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। थोड़ी आप एंट्री लेंगे तभी हाँ आपका मार्क्स इंक्रीज होंगे। नाउ राशि आपने अच्छे पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे, और स्टार्टिंग भी आपने अच्छी की थी। तो आप, इट वुड बी बेटर कि अगर आप एक दो पॉइंट्स और ऐड करें उसमें, तो आपके लिए बेनिफिट होगा राशि। ओके, अभी नेक्स्ट जब हम लेंगे तो ट्राई करेंगे जीटी लेने का, क्योंकि जीडी की आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई है, और जीटी का आपका इतना प्रैक्टिस नहीं हुआ है। और जो मेन जो स्टूडेंट अटकते हैं वो शायद जीटी में ही अटकते हैं, क्योंकि वो एक कलेक्टिव ग्रुप एफर्ट होता है। जीडी में तो आपको इंडिविजुअल मार्क्स मिलेंगे, इंडिविजुअल आपने जैसे बोला है उस पे मार्क्स मिलेंगे, और जीटी में आपको पूरे ग्रुप के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो एनी अदर डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर आपने मेरा फीडबैक लिया। जीडी में अच्छा, कितना बार बोलना तो उतना बार बोल सकते हैं ना सर? देखो बोलने का तो ऐसा नहीं है, आप बोल तो कितनी बार भी सकते हो, लेकिन मिनिमम नहीं नहीं कुछ भी तो, नहीं भाई, मतलब कितना बार, मतलब अभी एक दो बार तीन बार ऐसा बोल सकते हैं क्या हाँ बीच में? मिनिमम मतलब 2 to 3 टाइम्स तो आप एंट्री लीजिए और वैलिड पॉइंट्स रखिए अपने। अगर आप 2 to 3 टाइम्स ले रहे हो और वैलिड पॉइंट्स रख रहे हैं तो बेटर होगा। और सर जैसे कोई टॉपिक आ जाए और सर पता ही ना हो उसके बारे में कुछ। उसके लिए यार मेरे पास कुछ मतलब फ्रेजेस वगैरह बनी हुई हैं, तो मैं एक ग्रुप पे एक बार शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको पता चल सर, जाएगा। ये वैलिड डाउट है कि मान लो टॉपिक के बारे में आपको पता ही नहीं है, उस टॉपिक को सुना ही नहीं, फिर क्या मतलब? उसमें क्या होता है कि उस पर जस्ट पहले सबका सुनना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं आता है तो किसी को भी नहीं आता हो, ठीक है। तो उसमें सबका सुनना है, फिर क्या करना है कि सबका सुनने के बाद उसी को ही थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज में स्पीक आउट कर देना है, ठीक है। बस केवल उस टाइम पे आपको जस्ट फोकस्ड रहना है कि दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है। अब अगर उसने इंग्लिश में बोला है तो आप हिंदी में बोल दीजिए, उसने हिंदी में बोला है तो आप उसको इंग्लिश में बोल दीजिए। उससे क्या होगा कि पैनल मेंबर को ये लगेगा कि इसने कुछ बोला है, ठीक है। बस आपको वहां पर चुप नहीं रहना है। अगर आप वहां पर चुप रहेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये सिंपल सा रूल है वहां पर। जो भी गुड़गांव सेंटर पे जाएगा उसका ये रूल है, और बाकी कोलकाता और मुंबई में जो जाएगा उसको तो जीडी जीटी का स्पेशली प्रिपेयर करना है। क्योंकि वहां पर देखो मुंबई में जो होता है उसमें मिनिमम उसमें हाफ हाफ आवर तक जीडी चलता है आपका, ठीक है। जो मुंबई सेंटर में है उसमें हाफ आवर तक आपका जीडी जीटी चलता है, जबकि कोलकाता सेंटर में आपको हार्डली 15 मिनट्स में आपके जीडी जीटी दोनों हो जाएंगे, जिसमें पैनल मेंबर्स आपसे बारे में भी पूछ लेंगे, आपकी फैमिली के बारे में भी पूछ लेंगे, और आपको 15 मिनट्स में तो आप निकल के बाहर आ जाएंगे विद जीडी एंड जीटी। तो गुड़गांव सेंटर पे जितना मैं जानता हूँ जीडी जीटी को इतना फोकस नहीं किया जाएगा, आपको पीआई पे ज्यादा फोकस करना है। और मुंबई सेंटर पे स्पेशली आपको जीडी जीटी पे फोकस रखना है, क्योंकि वहां पर एलिमिनेट होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मेरे साथ के ही दो मतलब मेरे जूनियर थे, वही एलिमिनेट हुए थे। मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, वो मुंबई सेंटर पे थे, ठीक है। तो इसलिए आपको सर वहां पर, सर वन मोर थिंग, जैसे जो पीआई का इंटरव्यू है उसमें टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करें कि नॉन टेक्निकल ज्यादा फोकस करें, लाइक एचआर टाइप यार के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस इसका की आंसर आपको कोई मतलब? नहीं दे सकता, प्लीज। इसका आंसर तो भी नहीं दे सकता है, क्योंकि आईयूसीएल में क्या होता है, आपका मैं सिचुएशन बता देता हूँ। जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद इन 7 to 10 मिनट्स में हो गया था, ठीक है। और मेरे से पहले 2 स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन और हो गया था, और विद इन 7 to 10 मिनट्स उन्होंने 2 स्टूडेंट फ्री कर दिए थे पीआई लेकर। ओह, नाउ यू कैन थिंक अबाउट दिस कि क्या सिनेरियो होता है वहां पे। वो सर वन आपको मोर, देख के ही पहचान लेंगे कि इस स्टूडेंट को लेना है कि नहीं लेना है, उनका पता है माइंडसेट बन जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, कि इस स्टूडेंट को लेना है कि नहीं लेना है। बस आपको जाना है वहां पे, वो जो पूछ रहे हैं बस प्रिपेयर करके जाइए। देखिए एचआर में मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रिपेयर करना। आईयूसीएल की साइट पे जाइए, वहां पे आपको राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स मिलेंगे, उसमें अबाउट अस होगा,
ठीक है। अबाउट अस में इंडियन ऑयल की ब्रांड्स होंगी, इंडियन ऑयल किन सेगमेंट्स में वर्क कर रहा है, इंडियन ऑयल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, इंडियन ऑयल की कैपेसिटी, और क्या उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, और क्या उसका विजन है, क्या मिशन है, इंडियन ऑयल का लोगो क्या है, लोगो के पीछे का पर्सपेक्टिव क्या है, जो उसका अ, जो उसका किस कलर कॉम्बिनेशन का लोगो है उसका भी पर्सपेक्टिव है, तो उसको भी थोड़ा याद करके जाइए। ठीक है, इट मीन्स कि अगर उस उन 3 डॉट्स पे इंडियन ऑयल अबाउट अस में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप ढंग से प्रिपेयर करके जाइए, उसके बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। सर ठीक है, बाकी तो नॉर्मल पार्ट। हाँ बोलिए। सर ये कह रहा हूँ कि सर जैसे एमटेक तो कर लिया, बट तो उतना मेरे को मेकाट्रॉनिक्स नहीं आता है, तो एमटेक से सर क्या नहीं मतलब क्या आता? करना है एमटेक का? सर जैसे मेरा बीटेक मैकेनिकल से है, बट मेरा एमटेक मेकाट्रॉनिक्स से है, और मेरे को मेकाट्रॉनिक्स उतना ज्यादा नहीं आता है, बेसिक्स बस तो मेरे को आपने बेसिक्स आते हैं। मेंशन किया है आपने? सर मेकाट्रॉनिक्स फॉर्म में तो मेंशन नहीं किया है मैंने, जो उसका फॉर्म था। उसे मेंशन कर दीजिए। आप देखो नहीं आता है तो सिंपली बोल दीजिए कि सर मतलब एक्चुअली आई एम नॉट गॉन थ्रू इन द डीपर नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। वो सिंपली हट जाएंगे। अगर आप उनको घुमाने का ट्राई करेंगे तो वो डीप में लेके जाएंगे और आपको वहीं धर लेंगे वो। यही होता है। ठीक है। हाँ विघ्नेश, मैं आपका फीडबैक देना बाकी था। तो आपकी जस्ट मतलब बोलने का तरीका मुझे अच्छा लगा आपका। ठीक है, पॉइंट्स भी आपके काफी रेलिवेंट होते हैं, स्टार्टिंग से ही मैं बोलता आ रहा हूँ। पॉइंट्स आपके रेलिवेंट थे। बस ये है कि थोड़ा मुझे एनर्जी थोड़ी कम लगती है, तो आप थोड़ा एनर्जी अगर थोड़ा बढ़ा देंगे तो वो बेनिफिट होगा। और थोड़ा ट्राई करिए मतलब, क्योंकि कोलकाता सेंटर में क्या, आपका मुंबई सेंटर में है ना विघ्नेश? यस सर, मुंबई। हाँ, तो मुंबई सेंटर में क्या है कि आपको जीडी थोड़ा लॉन्ग चलने का आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर लॉन्ग चलेगा तो आपको 8 से 10 पॉइंट्स अपने पास पहले ही नोट डाउन होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं अगर जब जीडी लूंगा तो उस टाइम पे उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बता दूंगा कि अगर कुछ टॉपिक नहीं आते हैं आपको तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ओके ठीक है सर। ना? हाँ। सर लाइक या किसी एक सेशन थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, सो दैट हमको भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ओके, मैं नेक्स्ट में ट्राई करता हूँ ये वाला। ओके सर, थैंक यू। या अदर डाउट? सर जीटी में एवरेज मार्क्स कितना मिलता है? एवरेज यार वो दे देते हैं, मतलब 60% मार्क्स दे देते हैं एवरेज। 3 नंबर। सर जैसे आपने मुंबई के बारे में बोला था, जीडी थोड़ा लंबा जाएगा, एंड पीआई का कुछ उसमें लाइक। देखो मैं कोलकाता में पीआई के बारे में बता सकता हूँ। थोड़ा कोलकाता में बताइए। पीआई एकदम रैंडमली चलता है। ठीक है, उसमें जस्ट 2022 में ऐसा था, कोई फाइनेंस का मेंबर आके बैठ गया था। यस। तो तो वो जस्ट जीडीपी और इन सब के बारे में पूछ रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट द जीडीपी एंड ऑल। ठीक है, तो वो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा तब पता नहीं कोई साइको आके बैठ गया है वहां पे, कोई कोलकाता वाले मेंबर से पूछा था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे पता नहीं वही फाइनेंस का मेंबर सबको यही क्वेश्चन पूछ रहा था, जो फाइनेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, तो सब एकदम होपलेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बता पाएंगे तो डेफिनेटली यार होपलेस होना तो स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए क्या है कि अगर कोई ऐसा पर्सन आके बैठ जाता है और आपको नहीं पता है तो आपको पैनिक नहीं करना है सिचुएशन में, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली मना कर दीजिए, सॉरी सर, नॉट नो नो आइडिया फॉर दिस। तो इससे क्या होगा, वो मूव ऑन कर जाएंगे दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप उनको घुमाएंगे कि सर जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन दिस दिस दिस, तो आपको इतना डीप ले जाएंगे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब कब में आपका इंटरव्यू बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो नहीं आता है सिंपली एक शब्द में बोलिए उनसे, सॉरी सर, नो आइडिया फॉर दिस। इससे क्या होगा, वो डेविएट हो जाएंगे। और सर आई इंफॉर्मेशन का एक वीडियो होता तो अच्छा होगा था। क्या? आईओसीएल के बारे में एक वीडियो बना तो अच्छा होगा थोड़ा। हाँ, उसका मैं एक बार वीडियो का ट्राई करता हूँ, वैसे तो हम चलिए एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। एक वीडियो हो जाता। यस, क्या? हो जाएगा वो भी एक बार। जब मयंक अपने वहां पहुंच जाएगा ना बरौनी रिफाइनरी, तो उसके बाद वो वीडियो भी आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए, 28 के पहले ही आ जाएगा, क्यों मयंक, है ना? हाँ, वो पहले आ जाएगा आज के चलते। अबाउट अबाउट आईओसीएल का, ठीक है। डन। और यस सर सर, यस और सर। हेलो। बोलो। हाँ, यस यस राशि।
सर जैसे कोई तरीका है कि सर पीआई में कैसे अपने फेवर में इंटरव्यू को डायरेक्ट कर सके उन यस हाँ, उसमें क्या होता है कि जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप एंड में कुछ ऐसा पॉइंट्स नोट डाउन कर दीजिए, जैसे कुछ भी आपकी हॉबीज वगैरह है या फिर आपने समर ट्रेनिंग वगैरह की है, तो वहाँ पे एंड कीजिए आप। ठीक है। और समर ट्रेनिंग वगैरह ऐसी होनी चाहिए जो कि आईयूसीएल से रिलेटेड हो। ठीक है। अगर आपका कुछ ऐसा समर ट्रेनिंग है, जैसे अगर आप कौन किस ब्रांच से हैं आप एक्चुअली? सिविल। ये वर्क अच्छा, आप सिविल एक्सपीरियंस है से। मैं इन्हें मैं बताता हूँ, देखो इनका एलएनटी में वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक। मैं एक थोड़ा सा ओके, तो आपका आपका एलएनटी के ऊपर चलने वाला है इंटरव्यू, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। हम्म आपका एलएनटी के ऊपर चलेगा, तो आप एलएनटी को पढ़ के जाइए, क्योंकि जिनका वर्क एक्स होता है ना, वो वर्क एक्स से ही पूछते हैं, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप एलएनटी ही पढ़िए अपने, तो सर आपका जैसे तो मैं अभी श्योर हूँ फॉर्म वही चलेगा। सर ऐसे फॉर्म में तो कहीं है ही नहीं, पूछा ही नहीं है वर्क एक्सपीरियंस, तो सर वो तो इंक्लूड ही नहीं किया मैंने अभी तक। तो सर वो मतलब बायोडेटा डायरेक्ट में शायद पूछा है, बायोडेटा में सर पूछता है मैं आपको। वर्क एक्सपीरियंस में सिर्फ आईओसीएल से रिलेटेड पूछा है कि आपने वहां पे इंटरव्यू कभी दिया है कि नहीं, या फिर आपने कभी वहां पे काम किया है कि नहीं। सिर्फ इतना अच्छा, ही वर्क पूछा है एक्स सर। अभी नहीं पूछा है? नहीं पूछा है सर इसमें, तो सर मतलब जब इंटरव्यू देंगे नहीं बता सकते हैं उनको तो तो। पूछा है सर? उसमें इंटरव्यू देने में उसमें पूछा है मेरे अकॉर्डिंग टू वर्क एक्स, बायोडेटा आपने भरा है? नया डेटा एक्सपीरियंस। भरा नहीं है अभी। मैंने हाँ, देख लिया है तभी सर, तो। मैंने देखा है नहीं सर नहीं, मैंने, उसमें पर पूछा है, भरा। उसमें देखेगा, उसमें पूछा हुआ है। आप तो एक वर्क बार एक्सपीरियंस देखेंगे का एक तो। पॉइंट है कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है देने के लिए एक पॉइंट है। वर्क एक्स आप भरेंगे ना, तो जैसे ही आप वर्क एक्स भरेंगे, देखो क्या होता है, जो बायोडेटा फॉर्म आप भरते हो, केवल वही 4 डॉक्यूमेंट आपके इंटरव्यू पैनल के पास जाते हैं, उसके अलावा उनको नहीं पता है कि आपकी AIR 1 है कि AIR 1000 है। ठीक है। और अगर कोई ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपनी रैंक बताता है, तो हो सकता है कि वो ईगो पर भी ले जाए इस बात को। ठीक है। तो इसलिए मतलब देखो, आपका तो मैं श्योर हूँ, आपका तो एलएनटी के ऊपर ही चलने वाला है। ठीक है। बाकी 2-4 बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने इंटर्नशिप की थी आईयूसीएल में, तो मेरा जो इंटरव्यू था, वो ओनली आईयूसीएल के ऊपर चला था। मतलब सिंगल क्वेश्चंस भी उन्होंने ना तो मेरे करिकुलम से पूछे थे, ना किसी और से पूछे थे। बस 1-2 HR क्वेश्चन जरूर पूछे थे कि एलपीजी सीएनजी में क्या डिफरेंस होता है, किसमें क्या कंटेंट होता है, पेट्रोल का क्या डेंसिटी होता है, जो कि बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जब भी आप बोलेंगे ना, तो आप एलएनटी पे ही अपना ओवर कीजिएगा इंट्रोडक्शन, तो सर आई एम वर्किंग इन एलएनटी इन दिस डिपार्टमेंट, और उसको आप ढंग से पढ़ के जाइए। ठीक है। तो बस उस पे आपको फोकस्ड रहना है। बाकी आपका मैं बता देता हूँ, 15 to 20 मिनट्स आपका इंटरव्यू चलेगा, क्योंकि जिनका वर्क एक्स होता है उनका थोड़ा ज्यादा चलता है। ठीक है। तो ठीक है, तो फिर एंड अप करते हैं सेशन को, तो मिलते हैं फिर थैंक नेक्स्ट यू सर। सेशन में। ठीक है। ओके, थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। बाय।